हज़रात प्रोग्राम उम्मीद-ए-नौ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आर्डन रोशन और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, he not only inspires me but has inspired everyone around me. He started working at a very young age और आज 17 साल का एक्सपीरियंस वो रखते हैं in the field of sales and marketing. Ladies and gentlemen, आपकी मुलाकात करवाते हैं Mr. Christopher Healy. Sir, how are you? I'm doing very well, Arun. Thank you so much for having me here. Sir, it is certainly an honor to have you here with us today. Or to start off, just talk us through as to how you started your journey, or what makes you so passionate about this work. Well, that's a very interesting question. I started my journey at a very young age, of course, and started doing various things, whatever you do at your young age. Being passionate about doing different things. I mean, it's a learning stage. So based on learning stage, it's important for you to try a lot of stuff. And to find what basically interests you the more, or what you're good at. And so from there, I did a lot of things, and then again, I found out I was somebody that was made for it, sales, marketing, and stuff like that. So that's how it all began. So how do you think has your skill set grown over time? That's a pretty deep question, I must say, because if you look at skill set, I mean, skill set has a lot of various things to it, from time frame to time frame. Based on my experiences, there's skill sets that I've learned, through our training development programs. There's skill sets that I've learned from people. There's been improvement through different environments, situations, and everything. But what I would say counts the most is my development in my own faith. That's what's been, a very, very important, difference and a very, very, built-up point for me in my life, I must say. So I would acknowledge my faith. Development being as my important skill set that's been developed. Right. Talking about marketing, we have a product, right? Now we need to market it. For everyone who's new into this business, उनको क्या करना चाहिए? I mean, how can they identify their target audience? And how can they gather their data afterwards? Good question. And ये depend करता है on different factors, right? So let's take this as as a learning from a very small thing, okay? Let's learn from people who get out there on a daily basis, okay? With a daily target, right? Let's not talk about doing anything big at an organization, or doing something at a multinational, or a big sales team. Let's talk about people that are going out there and managing their daily targets. And for example, we go out there to our vegetable vendors, we go out there to our fruit vendors, we go out there to people who every day go out to the market, buy their product, put it on a cart, and go out to sell it. When he's doing that, he's setting up a goal and he's aligning his target audience, right? Who is going to be there to basically have his product sold, right? So it is very important for your goal setting, your mind frame, and being very passionate and positive about what you do. So if there's somebody that goes out there, let's say, I'm being very, very generic with this right now, and being very, very, clear on this point, that we're talking about small vendors, right? We're talking about, let's say, a fruit seller, for example, right? Or somebody that's selling ice cream, for that instance, right? He picks up a product, he invests what he has, he purchases a product, and sits out there in the market looking for his target audience, right? That's you, me, other people that go out there looking for that product. So he has a goal. When he starts working in the morning, he knows by the evening he needs to get this wrapped up. That's when he achieves his target. So answer to your question, his audience is somebody that he develops, and his data is the people that visit him. So if there's a good pricing, if his product is good, and if he takes care of us pretty well, that means in terms of dealing and pricing, cost, and everything, of course quality, you're gonna come back to him. So you're his data.
राइट सर। एक और मजे का क्वेश्चन, थ्रू आउट योर करियर 17 साल का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी गलती जो आपने या ड्यूरिंग सेल्स बंदा कोई ना कोई ब्लंडर जरूर करता है, बिल्कुल, तो कोई ऐसी सेल जो आपको याद हो जिसमें कोई ऐसी आपने बात कर दी हो और आगे से आपका कस्टमर चढ़ाई करना शुरू कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? आज बहुत अच्छा सवाल पूछा ये आपने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ आते हैं और जब आप क्लाइंट्स को डील करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन दैट यू फेस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने अपनी सर्विसेज प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं की या कुछ आपकी सर्विसेज प्रॉपर डिलीवर नहीं हुई, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जहां क्लाइंट डिससैटिस्फैक्शन शो करता है, और ये वो टाइम होता है जो सिर्फ मैंने नहीं बल्कि एवरीबॉडी इन सेल्स विल फेस, हर किसी को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन सारी डिपेंडेबिलिटी वो है कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, देयर इज अ वर्ड enthusiasm. There's a lot of other things where we are taught once we are trained कि कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर किसी को डिससैटिस्फैक्शन है तो आपने सोल्यूशन ढूंढना है उसका। डिससैटिस्फैक्शन का आपने सोल्यूशन ढूंढना है, आपने आर्ग्यू नहीं करना होता। मतलब है there's dissatisfaction तो मतलब there's a reason behind it, आप रीजन पकड़ के उसका सोल्यूशन निकालो एंड मेरे ख्याल से यू बी गुड। बिल्कुल, एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट। मतलब you go to a customer, you're not going to sell your product, लेकिन आप बताएंगे कि how can you solve their problem। बहुत सही। तो throughout your career देखिए, आपने लीडरशिप पे बहुत ज्यादा फोकस किया। बिल्कुल। तो how do you see self development in terms of leadership? सेल्फ डेवलपमेंट की जब हम बात करें आर्डू, तो सेल्फ डेवलपमेंट सबसे की फैक्टर है आपके करियर में, आपकी रेगुलर लाइफ के अंदर, आपकी हर चीज में सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे तो आप बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी डिपेंडेबिलिटीज के अंदर आप फंस जाओगे, सही है ना। एंड बेस्ड ऑन माय करियर, बीइंग सेल्फ मेड, आई वुड से एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे फेवर में हुआ है। तो सेल्फ डेवलपमेंट मैं इस चीज को ऐसे समझूंगा कि आपने अपने आप को ओपन टू लर्निंग रखना है, आपने नई चीजें सीखनी है, आपने नए वेंचर्स करने, और आपने बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो उससे आपने सीखना है। आपने हर चीज एक पॉजिटिवली लेनी है, आपने सेल्फ डेवलपमेंट में उसको काउंट करना है। जब आप इन चीजों को अपनी अकाउंटेबिलिटी के अंदर डालेंगे तो वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी। अगर आपके पास नीचे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की लिस्ट ही नहीं होगी तो आप कैसे सेल्फ डेवलप करोगे? अगर आप एक बुरा वक्त है, फॉर एग्जांपल एक बुरा वक्त आ जाता है और आप उस बुरे वक्त को रोते रहें, तो दैट्स नॉट सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, दैट बिकॉज़ आप सीख नहीं रहे उस टाइम से। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप जब आपने उसको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में ऐड किया है तो आप हमेशा उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, ठीक है। आप उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाओ बल्कि आप उसको अपनी डेवलपमेंट में काउंट करो। तो जब आपका गुड वक्त चल रहा हो तो आप उस वक्त को याद करो जो गुजर चुका, और जिस वक्त को कैलकुलेट करो और अपना करंट वक्त ऐसा बनाओ कि वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में काम आए। That should be, that's what for me। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि learn from your mistakes। बिल्कुल बिल्कुल। It's either you win or you learn, you never lose। You never lose। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड आपने बात की सेल्फ डेवलपमेंट, इसी तरह एक और चीज है सेल्फ मोटिवेशन। True। How do you see that? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बात वही है जिस हमारी पिछली बातों से कनेक्ट होती हुई बात है कि आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है और उसके लिए आपको खुद रीजंस भी ढूंढने हैं। एक बंदा आपको मोटिवेट करता रहे, आपको बोलता रहे यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप अपने आप को बोलें कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, ये थोड़ी बात जो है ना काफी लोगों के लिए टफ हो जाती है, जो कि इतनी टफ है नहीं। क्योंकि अगर आप अपने अंदर बिलीव करते हो, यू बिलीव ऑन योरसेल्फ, और आप इस चीज में ईमान रखते हो कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा में बहुत फर्क है। जब आप इस परसेप्शन से जाओ कि मैं कर लूंगा, वो सेल्फ मोटिवेशन है।
और कर सकता हूँ, मतलब है that's somebody that's motivating. So self-motivation, the keys for self-motivation that has been helpful for me is number one, believe in what you do. आपने जरूर उस चीज में ईमान रखना है. आप चाहे कोई भी काम करो, आप छोटे से छोटा काम ले लो, बड़े से बड़ा काम ले लो, अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लो. जिस चीज में आप ईमान रखोगे वो चीज आप कर लोगे. जिस चीज में आप सोच रखोगे whether ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. क्योंकि जब आप एक फाइटिंग स्पिरिट के ऊपर उतरते हो, ठीक है, कि ये चीज मुझे अचीव करनी है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम छोटे भी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं. हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी चीजों से. तो वी डू दैट बिकॉज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन दैट एंड हमें उस चीज का फन लेना है. हाँ, तो व्हाटएवर इट इज, तो आप वो करते हो ना, वो आपकी सेल्फ मोटिवेशन से करते हो. आपके पेरेंट्स से नहीं बोलते मस्ती करो लेकिन आप करते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फ थिंग. सो दैट्स जस्ट अ लिटिल एग्जांपल फॉर जनरल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड. लेकिन सेल्फ मोटिवेशन is a very important factor, not only for your professional career, your family oriented career as well. सही है, अपनी फैमिली लाइफ को लीड करने में सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है. आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है. एंड इवन फॉर योर डेली लाइफ आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है. फॉर एवरीथिंग दैट यू डू यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. भले आपके पास कोई इंस्पिरेशन हो, आप किसी से इंस्पायर्ड हो या कोई भी चीज हो, आपकी इंस्पिरेशन होती है, लेकिन उस इंस्पिरेशन को फॉलो करने के लिए आपकी सेल्फ मोटिवेशन आपको हेल्प करती है. And this perhaps is all about the mindset. People need to change their mindsets accordingly. और साथ साथ इसमें अब जैसे हम देखते हैं कि पिछले एक साल के अंदर how the business culture has changed. Very true. अब हमें लगता था कि शायद अगला साल बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन बिल्कुल in the next 5 years I am pretty sure कि ये पूरा culture एक नई शक्ल इख्तियार करेगा. 100%. So how do you think should our youth prepare themselves for this? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो है ना आइडेंटिफाई की, ये दिस इज अ $1 billion क्वेश्चन. ठीक है, कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है इस वक्त के इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएं. ठीक है, और यूथ इस चीज को एक्सेप्ट कर ले अब कि वी आर इन अ डिफरेंट टाइम राइट नाउ. हम एक अलग वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त. ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी हैं. इस वक्त भी जिस वक्त में हम बैठे हुए और बात कर रहे हैं, तो आप देखो अपने इर्द गिर्द और चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं. ठीक है, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि यार हम जो ऑफिस में काम करते हैं, हम कभी ऑफिस में नहीं बैठेंगे अब, बल्कि एक रिमोट वर्कर बन के हम काम करेंगे. ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं. मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास, हमारे फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी जो है, हमारी फ्रीलांसर कम्युनिटी है, वो काम करती है. ठीक है, और अक्सर चीजें ऐसी होती थी कि फ्रीलांसर्स भी मतलब है दे यूज्ड टू रेंट सीट्स एंड हैव देयर ओन ऑफिसेज, और वो बैठ के वहां पे एक एनवायरनमेंट बना के काम करते हैं. लेकिन अब वो एनवायरनमेंट है नहीं, चेंज हो चुका है, बहुत मेजर चेंज हो चुका है. हम अभी बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन. तो एक ऑफिस में काम करके बैठने की मोटिवेशन अलग होती है, और जब आप खुद से बैठ के काम करते हो तो वो सेल्फ मोटिवेशन पे आप करते हो. बिल्कुल, ठीक है ना. तो आप उसमें से अगर चीट्स निकालने लग जाओ तो आप मतलब है लूज करोगे, क्योंकि ये वक्त वो है जिसमें टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो चुका है. बिकॉज हर कोई एक स्ट्रेस, एक बर्डन के अंदर है. भले आप एम्प्लॉयर्स हो या आप एक बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हैं, उसमें आपकी अब सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा काउंट करती है, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी है. मतलब है we see so much going on in the world. We see big businesses crashing. सही है, अब कंपनीज क्लोजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और दूसरी बहुत चीजें हैं जो हमें इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे हिट कर रही है. आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हुए कि यूथ कैसे इस चीज को अब डेवलप करे या एक्सेप्ट करे. इस चीज को एक्सेप्ट तो करना है, मतलब देयर इज नो अदर क्वेश्चन अबाउट इट. ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज. वी हैव टू डू समथिंग जो कि डिफरेंट हो. सही, हम वो नॉर्म्स के ऊपर अब नहीं चल सकते जिस पे हम चलते आए हैं इन आवर करियर्स. तो अभी टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है. द क्वेश्चन इज, हर बंदा चाहे वो
एक छोटी जॉब करता हो या एक बड़े से बड़े कॉर्पोरेट में काम करता हो, ठीक है, उसके लिए चीज चेंज हो चुकी है। यूथ के लिए इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि दे जल्द से जल्द ये ढूंढें कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो कैसे इस चीज को लीड करना चाहते हैं। हमें लीडर्स बनना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो ओके ये लीड कर लेगा और हम कर लेंगे, नहीं। आई थिंक everybody is a leader at this point. Everybody is a self manager. आप मैनेजर हो, there is nothing that you know कि मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन वो अगर ऐसा करवाएगा तो मैं करूंगा और वो कंपनी ऐसी ऑफर करेगी तो हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अब फील्ड्स सेलेक्ट करना शुरू करें, ठीक है। वी हैव अ प्रीटी ह्यूज स्कोप इन डिजिटल, you know, in digital media. True. So we have a huge scope, you know, in web development. You know, we have a huge scope in other stuff that you can learn. आप अपना एक हुनर बना लें। जरूरी है कि आपके पास एक हुनर हो, ठीक है। और इस वक्त को देखते हुए हर चीज वर्चुअलाइजेशन की तरफ जा रही है और ऑनलाइन जा रही है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि यार अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, आप जाओ यार कुछ सीखो। आप अपने उन कोलीग्स के साथ यू नो हाथ बढ़ाओ जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वक्त वो है आदमी के एक दूसरे का साथ देना है, समझ रहे हो आप, एक दूसरे की वो यू नो बैक स्टैबिंग या बैक बाइटिंग का काम नहीं है। सक्सेसफुल बंदा वो है अभी जो के साथ देगा, जो ये बोलेगा कि नहीं यार मैं जो है ना खुद देख लूंगा और कर लूंगा, तो इट्स गोना बी टफ, ठीक है। हाँ, उन लोगों के लिए who know the trade, उनके लिए मैं बोलूंगा कि भाई आपका काम बनता है कि आप आगे हेल्प आउट करो, ठीक है। हेल्प योर कम्युनिटी, आप देखो अपने आसपास उन नौजवानों को जिन्हें आप ग्रूम कर सकते हो। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यूथ बिल्ड होगी। और इट्स इंपॉर्टेंट कि हर कोई अपने आप को अब एक लीडर यू नो के पर्सपेक्टिव से लेके चले, क्योंकि जब तक एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव माइंड में नहीं होगी तो आप एक स्टेप आगे नहीं लोगे, समझ रहे हो। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ओन करो, उस चीज को फॉलो करो, इस वक्त को एक्सेप्ट करो और अपनी एक नई चीज डेवलप करो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कहा जाता है कि आजकल का जो दौर है, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन बट इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। वेरी ट्रू। किस तरह से हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकट्ठे चलना है, एंड वी ऑल नीड टू ग्रो एंड मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात। और इस काम के लिए मतलब जैसे आपने जिक्र किया कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो कितनी वेबसाइट्स हैं जो फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, तो एवरीवन हु वांट्स टू लर्न कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी और वो इन सारे कोर्सेज से सीख सकते हैं। 100% आर्यन, अगेन आपकी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए चीजों के लिए। So instead of wasting time, you know, on YouTube listening to songs, you can actually learn a course. Exactly. आप सीख सकते हो। बिल्कुल sir, thank you very much. Thank you very much. मतलब it was certainly an honor to have you with us. Moving towards the end of our program, एक आखिरी मैसेज प्रोग्राम उम्मीद-ए-नौ के लिए और हमारे तमाम यूथ को। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये काम दे दिया। लेकिन all I would say is कि Umeed-e-Nau is a great platform जहाँ not only me but यहाँ पे जो गेस्ट आ चुके हैं और उनकी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं वो लोग, और आप उनको देखें और उनसे सीखें। Umeed-e-Nau के साथ आप कनेक्टेड रहिए ताकि you get to know you know the best of best people that are working in the community। मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कह रहा, लेकिन आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आदमी की अपनी बहुत ज़्यादा यू नो इन्वेस्टमेंट्स हैं कम्युनिटी वर्क के अंदर और इनकी टीम की भी। तो कनेक्टेड रहिए Umeed-e-Nau से, और जो गेस्ट आ रहे हैं उनको आप फॉलो करें, उनसे सीखें। और यू नो मैसेज फॉर द यूथ, प्लीज टाइम मत वेस्ट करें। ये टाइम वेस्ट करने का वक्त ही नहीं है, वक्त हम खो चुके हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जल्द से जल्द स्टैंड्स लें, स्टेप्स लें और यू नो चीज़ों को अपने आप को डेवलप करें, अपनी यूथ को बिल्ड करें, अब एक दूसरे का साथ लें और ट्राई भाई कि आप प्रोडक्टिव लोगों के साथ उठे बैठें, पॉजिटिविटी फैलाएं
اور اپنے لیے اور اپنے for the coming generation ہم ایک ایگزامپل سیٹ کر کے جائیں تاکہ things don't get bad or worse, بلکہ ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کرنے کی ہم لوگ کو یہ ٹائم ملے, اس کو ہم یوٹیلائز کریں. سر تھینک یو ویری مچ. اور اتنی خوبصورت آپ نے بات کی کہ پروڈکٹیو لوگوں میں اٹھے بیٹھے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے tend to be at places where others are ahead of you, کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں where you are that smarty pants, تو آپ کی گروتھ شاید وہیں پہ رک جائے. So always be at places where others are ahead of you, تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کو ملے. On this note, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور شخصیت کے ساتھ اور جانیں گے ان کی کہانی انہی کی زبانی پروگرام امید نو میں. خدا حافظ.